Bismillahirrahmanirrahim. Last class we talked about purpose of life, and I'm going to take it from there and build it up to understanding that what is it that we are required to serve. Because हम जब अल्लाह ताला हमें कहते हैं कि हमने आयत पढ़ी कि अल्लाह ने हमें क्रिएट किया है to serve him. एंड बट हम ये तो समझ लेते हैं कि हमें अल्लाह को सर्व करना है, बट अल्लाह को सर्व करने का मतलब क्या है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट? सो बेसिकली वी लर्न दैट वी हैव टू follow Allah's commands and be a good human being. And we have to make sure that we are consciously living our life and making things easier for ourselves and for people around us. And we make sure that we are not contributing to anything which is destructive, corrupt or chaotic, bringing disorder to this world. So we have to ensure that whatever we do, whatever actions we do, we are mindful of those actions, that we are going to be accountable for all those. We take responsibility of that because Allah has made us Khalifa on this earth. And with that comes a responsibility. The free will that Allah has given us is an amanat. And with that amana, we have to show responsibility that we deliver the trust that we've been entrusted with properly according to Allah's guidance and according to the commands, so that we bring more harmony, more peace in this world and make it a better place to live for ourselves and for everyone else. So we are supposed to follow the guidance, and in doing that, what happens is that because we are humans, we will make mistakes, and instead of serving Allah, we do serve other things. And that is what we learned about also, that we're not supposed to serve other things. So we have to see what are those other things that we without knowing or without being conscious of what we are doing, we end up serving them. So we are going to start with one ayat, Surah 19, ayat number 81. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Surah 19, ayat 81. वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन, और वो अखज़ करते हैं अल्लाह के सिवा दूसरे गॉड्स, लियकूनु लहुम इज़्ज़ा, ताकि वो उनको दे दे ज़्यादा इज़्ज़त, ज़्यादा प्रेफरेंस, प्रायोरिटी दे दें, to give them power and glory over what Allah has commanded us to do. तो जब भी हम अल्लाह की दी हुई कमांड्स या जो भी हमने सीखा है उसके अलावा किसी और को चूज करते हैं, किसी और चीज को फॉलो करते हैं, तो वी आर सर्विंग दैट थिंग ओवर सर्विंग अल्लाह. तो ये हमने समझ लेना है कि हम किस चीज को, व्हाट इज आवर प्रायोरिटी इन लाइफ, हम किस चीज को सर्व कर रहे हैं और किस चीज को सर्व नहीं कर रहे हैं, जो कि हमें जानना होगा कि हमने किन चीजों को सर्व नहीं करना है. विद इन बाउंड्रीज एंड लिमिट्स वी डू हैव एरियाज अलाउंसेस टू ऑपरेट, लेकिन एक लिमिट आती है जहां पे आपको चॉइस करनी होती है कि ये चीज करेंगे तो हम अल्लाह के रास्ते पर चल रहे होंगे, या इफ यू चूज समथिंग एल्स, then are we actually on the right path? Are we on Sirat-e-Mustaqim or we are deviating? So यहाँ पे आप देख लीजिए जो अल्लाह ने कुरान में हमें बताया है कि false gods या idols क्या है, उनमें सूरह 45 आयत नंबर 23 देख लें. गॉड के लिए लफ्ज इलाह इस्तेमाल हुआ है. 45:23 अफरा अइता मन तखज़ा इलाहहु हवाहु, क्या आपने देखा है ऐसे शख्स को who has taken as his God his own desires, so अपनी ख्वाहिशात को उसने खुदा बना लिया है. व अदल्लहुल्लाहु, and Allah has left him astray, ala ilmin, knowing this, व ख़तमा अला समइही व क़ल्बिही, और उसकी हियरिंग पर, उसके सुनने की ताकत पर और उसके दिल पर स्टैंप लगा दी जाती है. सो मीनिंग उनको सील कर दिया जाता है. ऐसे शख्स को जो अपनी डिजायर्स को फॉलो करता है, उनको खुदा मान लेता है, यू कांट मेक देम हियर एनीथिंग
and you can't make them feel anything. वजआला अला बसारिही गिशावा, और बना दिया जाता है उनकी साइट पर, उनकी देखने की ताकत के ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है। ये आप बहुत देख रहे हैं आजकल। ये सारी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं हमें अपने सराउंडिंग में लोग नजर आ रहे हैं जो कि अपनी डिजायर्स के पीछे इतना महव हो गए हैं, इतना इन्वॉल्व हो गए हैं, that they're not able to see the difference, where they're crossing all limits. And in doing that, they can't be guided. You can't talk to them. You can't make them feel anything. They have lost that sensitivity. अगर आप लार्जर पिक्चर भी देखिए तो जो गजा में सारा कुछ हो रहा है, वो सेंसिटिविटी ही नहीं है लीडर्स को कि आप कहाँ पे स्टॉप करें, आप क्या चाह रहे हैं। तो हम यही देख लेते हैं कि neither they can hear nor they can feel anything, and उनकी आई साइट, उनकी जो साइट है, what is their perspective, what are they looking for, उसके ऊपर पर्दा पड़ जाता है। तो जब आप अल्लाह के अलावा किसी चीज को, यहाँ पे डिजायर्स स्पेसिफिकली, उनको सर्व करते हैं, तो आपकी देखने, सुनने और फील करने की ताकत बंद हो जाती है एज अ ह्यूमन बीइंग। यू डू नॉट रिमेन लाइक जो अल्लाह ने बनाया है आपको रूह वाला इंसान, यू स्टॉप बीइंग दैट। तो आप फिर एक ऑटो ब्रेन के उसके ऊपर चल रहे होते हैं, जो कि साइकोलॉजिकली इट इज कंसिडर्ड एज एन इनसेन और डिरेंज्ड माइंड। फमई यहदीहे मिन बादिल्लाह, और कौन हिदायत देगा अल्लाह के बाद इसको। अफला तजक्करून, क्या वो इसका असर नहीं लेते, जिक्र नहीं करेंगे इसका। फिर नेक्स्ट आप देखिए, जो हमें गॉड्स पता चलते हैं 71 की 23 में, सूरा नूह में हमें और गाइडेंस मिलती है, क्योंकि उन्होंने भी अपने गॉड्स को नहीं छोड़ा था। तो वो कौन से गॉड्स हैं जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। सूरा 71 आयत नंबर 23, वकालू ला तजरुन्ना आलिहातकुम, और उन्होंने कहा कि नहीं छोड़ना आप अपने गॉड्स को। अगेन आलिहा का लफ्ज आया है। वला तजरुन्ना वद्दन, नहीं छोड़ना आप वद को। वद मीन्स द इमोशन ऑफ लव। नाउ इमोशन ऑफ लव इज अंडरस्टूड एज द अटैचमेंट लव, जो कि आप इतना ज्यादा अटैचमेंट कर लेते हैं किसी के साथ, किसी चीज के साथ, किसी इंसान के साथ, या किसी अपनी कोई सिस्टम, किसी वैल्यू के साथ, कि आप उससे अपने आप को जुदा नहीं कर पाते। यू कांट डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम इट। तो इसमें आप बहुत सारी ट्रांसग्रेशंस कर जाते हैं, thinking that you are sometimes, if it's love for family, love for children, love for spouse, आपको सही रास्ता नहीं नजर आता, and you start to serve that emotion rather than serving Allah। क्योंकि अल्लाह ने आपकी, हमारी भलाई के लिए हर चीज की लिमिट्स सेट की हैं, हुदूद रखी हैं। इनसे ज्यादा आगे अगर आप करेंगे, दैट विल बी ट्रांसग्रेशन, एंड इन ट्रांसग्रेशन दैट we will be facing suffering then. Again, this is also what we are seeing socially, a lot of that, because under the name or under the label of love, we are doing a lot of things and we think that we are right. Because again, हमारी culturally कुछ चीजें हमें pass down होती हैं, कुछ और चीजें हमारी अपनी पर्सनल इमोशनल कुछ चीजें होती हैं जिनके अंदर वीकनेसेस होती हैं, जिनकी वजह से वी आर नॉट एबल टू make such decisions which can go against that understanding of love that we think is love, but it's not love. Even if you love someone, you have to do what is right. That is what would mean serving Allah and not serving the emotion of love. वला सुवाआ, सुवाआ को भी, ये भी एक गॉड है। जब आप अपने आप को ये समझ लेते हैं होपलेस होके कि दिस इज अ बैड टाइम ऑन यू और दिस इज गुड टाइम,
या कुछ इस तरह की आप अपने बारे में ना एक बना लेते हैं, गुड और बैड टाइम्स के बीच में अपने आप को स्टक कर देते हैं। जिस तरह अ लॉट ऑफ पीपल रीड हॉरोस्कोप एंड देन दे बिलीव इन इट सो मच दैट दिस इज गोइंग टू हैपन एग्जैक्टली एज दे हैव रेड। सो इस तरह की सोच को आपने एंटरटेन नहीं करना, डोंट सर्व दैट, बिकॉज अल्लाह ताला कॉल्स अस टूवर्ड्स एक्शन। आप किस भी स्टेट में होंगे, when you take an action, when you make decisions and you move forward, that is when you bring about the changes in your situation. So just believing that it is happening from, somewhere, if it's out of your influence, yes, you can't do anything about it. But if you have to see if there is something that you can do, you can bring about a change, तो फिर आपको अपने काम से, अपने एक्शन से आपने कुछ एफर्ट करनी है, आपने कोई उसमें हार्ड वर्क डालना है, सो दैट यू फाइंड a change in the situation that you're currently facing, not just blindly believe that this is going to be the way it is. Wala yahusa, और ना ही yahus means seeking help from elsewhere. एक आप हेल्प लेते हैं सब लोगों से आसपास, वी आर मेंट टू हेल्प ईच अदर, बट बियॉन्ड दैट एक सर्टन हेल्प होती है जो आपको सिर्फ अल्लाह से मिलती है, और वो अल्लाह पे ट्रस्ट करना और अल्लाह के जो प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट करना कि अब आपने अपनी कैपेसिटी में सब कुछ कर लिया है। नाउ डोंट गो थ्रू रॉन्ग मीन्स सीकिंग हेल्प, सो दैट वहां से जब आपको हेल्प आएगी तो देन यू आर सर्विंग दैट एंड फिर आप उसके गुलाम हो जाते हैं। मकसद ये होता है कि आप फिर एक सॉवरन ऑटोनमस इंसान नहीं रहते जो कि अल्लाह ने आपको बनाया है। आपकी जो फ्री विल है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो आप जब लोगों से मदद ऐसी कामों के लिए मांगते हैं जो कि नहीं मांगनी चाहिए आपको, तो फिर आप अपना स्टैचर भी कम कर देते हैं और आप उनको सर्व करने लग जाते हैं। अगेन दिस इज कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड एंड टू बी कंसिडर्ड विद लिमिट्स एंड बाउंड्रीज। वयऊका, याऊक मीन्स एक और जगह भी ये लफ्ज आया है जिसमें गोट हर्ड का मतलब है, मीनिंग हर्ड मेंटालिटी। तो आप ट्रेंड्स को अपना गॉड बना लेते हैं। यू स्टार्ट सर्विंग व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट्स हैपनिंग इन द सोसाइटी। जो भी नॉर्म्स या ट्रेंड्स बने हुए हैं बस उन्हीं को फॉलो करें, whether they are in line with Allah's guidance or not, that is what we don't look at. तो ये भी हमें देखना होता है। It's important to evolve. It's important to bring about something new in your lifestyle. But blindly हर ट्रेंड को फॉलो कर लेना, एंड अगेन लिमिट्स के अंदर रहते हुए आप कोई भी चीज करेंगे वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक, इफ इट्स विद इन दोज लिमिट्स, इन द बाउंड्रीज दैट वी अंडरस्टैंड, तो वो ठीक रहेगा। एक हद से बाहर जब आप कोई चीज कर देते हैं तो अगेन वो ट्रेंड्स भी आप उनको सर्व कर रहे होंगे अगेंस्ट व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू। व नसरा, नसरा इज फीडिंग ऑफ others' weaknesses. Nasra means vulture. So vulture psyche is that vulture feeds off the dead. The dead meaning कि किसी इंसान की ऐसी अनकॉन्शियस कोई उनका एस्पेक्ट है या कोई उनकी वीक एरिया है जिसका वो अभी तक दे आर नॉट एबल टू वर्क ऑन इट, और आप यू पिक ऑन दैट एंड यू फीड ऑफ दैट वीकनेस। तो इस तरह से फिर आप अपने आप को उस चीज में सर्व करने लग जाते हैं कि आप, बिकॉज इट्स एक्चुअली योर ओन इनसिक्योरिटी, लेकिन उसको हटाने के लिए या उससे अटेंशन हटाने के लिए you start to serve your vulture psyche, which is all the time looking for some weak spot in another person to make yourself look bigger. So that service is also you're serving another false god and you're not serving Allah. And that's what bullies do. तो ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं ये हम अपने आसपास लोगों के अंदर भी देखते हैं। हमें ये सीखना है कि हम इस तरह की चीज ना करें, बिकॉज देन वील बी सर्विंग अनदर गॉड, वी वोंट बी सर्विंग अल्लाह। नेक्स्ट एक आयत देखिए सूरा 53 की आयत नंबर 19 एंड 20। ये वो वाले गॉड्स नहीं है जो हम समझते हैं कि जो हमने वी ग्रोन अप थिंकिंग के बुतों को पूजना।
ये आइडल्स ये हैं जो कुरान में मेंशन है। ये हमारी ट्रेट्स हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स, जिनको, या हमारी पर्सनालिटी वीकनेसेस, जिनको हमने सर्व नहीं करना, आउट ऑफ फियर और आउट ऑफ वरी और आउट ऑफ एनी सच स्टेट कि हम इनकी तरफ पड़ जाएं तो ये हमारे लिए गलत उल्टा साबित होंगे। इनसे, इनको सर्व करने से हमें फायदा नहीं होगा, हमें और नुकसान होगा। बिकॉज जो गलत काम आप दुनिया में करते हैं उसका रिटर्न आपको मिलता ही है। 53 की 19 एंड 20। आफरा तुमुल लाता, क्या तुमने देखा है लात को? लात अगेन एज गॉड रेफर हुआ है रिग्रेट्स। जब आप अपनी पुरानी किसी बात पे ही स्टक हो जाते हैं, कीप रिग्रेटिंग ओवर इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड समटाइम्स विद गिल्ट ऑल्सो, तो वो उसमें आप अगर पड़े रहते हैं तो फिर आप उसी को सर्व कर रहे होते हैं, एंड यू ऑपरेट फ्रॉम दैट स्पेस, एंड देन ऑब्वियसली यू कांट बी इन योर फुल पावर और इन योर फुल एलिमेंट जो कि आपको होना चाहिए। जब आप ईमान की तरफ आते हैं तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इन किस्म की वीकनेसेस से ऑपरेट करेंगे, इनको सर्व करेंगे, रिग्रेट्स में फंसे रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उनके साथ भी आपको रिजॉल्व करके कम टू टर्म्स विद इट एंड फिनिश इट। जो लेसन आपने लेना था उससे ले लिया, मूव ऑन विद द लेसन, मूव फॉरवर्ड। आपको प्रोग्रेसिव माइंडसेट होने की जरूरत है। ग्रोथ माइंडसेट के साथ यू हैव टू लिव योर लाइफ। दैट इज व्हाट हैविंग ईमान मीन्स। ईमान डज नॉट मीन दैट यू गो keep going back to your past or keep thinking with disappointment or having less hope that this happened or that happened and ऐसे क्यों हुआ, हो गया। Some things we have to close, we need closure for certain things, and we have to accept it and we move on, so that with that resolve and with that fresh perspective that we will try to avoid it next time, and we will not fall for it again. So don't serve your regrets and your guilt. Wal Uzza. Uzza means izzat and also ego. So जब आपकी ईगो को आप सर्व करने लग जाते हैं, it becomes your God. And that also we see a lot of wrong happens just in the name of ego. So ये honor के नाम पर जो चीजें होती हैं गलत किस्म की, ये सब by serving ego as your God. अल्लाह को आपने जब सर्व करना होता है तो अल्लाह ताला बहुत सारी नरमी, बहुत सारा कंपैशन, एम्पथी, फॉरगिवनेस, ये सब चीजें, रहम, मर्सी, ये नाम आते हैं। तो आप जब ईगो को सर्व करने लग जाते हैं तो फिर आप बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि बाउंड्री से ट्रांसग्रेशन हो जाती है, जो अल्लाह की बताई हुई बाउंड्री से बाहर निकल जाते हैं आप। तो हमने ये ख्याल रखना है कि हम ईगो के नाम के ऊपर भी ट्रांसग्रेशन ना करें। व मनात सालिसाता तल उखरा, और जो मन्नत मांगना है ये भी कि हम ये करेंगे तो ये होगा, टिट फॉर टैट का जो हमने एक हिसाब किताब रखा होता है मन्नत, कि हम यूं कर लेंगे हमारे लिए ये हो जाइए। आप अपने एक्शंस करते हैं क्योंकि अल्लाह ने आपको कहा है, आप अपनी इस्लाह करते हैं, एंड दैट्स इट। बाकी आपको जो रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे होंगे वही मिलेंगे। आप ये सोच कर कि अगर हम इतना कुछ करेंगे तो हमें ये मिल जाना चाहिए, ये वाली चीज आपको रॉन्ग ट्रैक पे ले जाती है। सो वी डोंट सर्व मन्नत, दैट ऑल्सो बिकम्स अ गॉड, सो वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट, कि हम अल्लाह के साथ इस किस्म की ट्रेड में ना फंसे कि हम इतना करेंगे या ये करेंगे तो फिर ये होना चाहिए। वो अल्लाह की मर्जी होती है, अल्लाह उसको एक्सेप्ट करे और उसको हमें किस तरह से रिटर्न दे, दैट विल बी बेस्ट फॉर अस, बिकॉज जो अल्लाह हमें देते हैं वही हमारे लिए ज़रूरी होता है। जो हम समझ रहे होते हैं हमारे लिए ज़रूरी है, हमें नहीं पता होता उसके बारे में। So these are the gods that we serve besides Allah when we are when we are either ignorant or we are not conscious, or that is, whatever we have learned from our elders or our society or the system that we are living in. अब हमने
खुद रिसर्च करनी होती है, जस्ट लाइक वी रिसर्च विद एवरी अदर थिंग when we want to find out where we are going wrong. तो हम देखते हैं कुरान में भी अल्लाह ने इसको एक एग्जाम्पल के साथ बताया है, हजरत इब्राहिम की एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि ही इज द प्रॉफिट हु ब्रोक द आइडल्स, एंड हमने भी अपने आइडल्स को इसी तरह से तोड़ना है उनकी मिसाल से। तो आप ये देखिए सूरह 6 की आयत 74 में। जी। व इस काला इब्राहिम ले अबी है आजरा, जब कहा इब्राहिम ने अपने वालिद से, जो कि आजर जिनका नाम है। अब ये सारी आप कुरान में जितने भी नाम आते हैं वो सिफाती नाम होते हैं। आजर का मतलब है स्ट्रॉन्ग एंड समथिंग जिससे आप सपोर्ट ले रहे हैं, तो समथिंग विद फॉर समथिंग दैट कैन बेयर बिग बर्डन। तो आजर के साथ जो उनके वालिद हैं, उन्होंने ही इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू हिम। दैट इज व्हेन हजरत इब्राहिम अप्रोचेस हिम with his with this the message. आ तत्तखिजु असनामन आलिहा, क्या आपने इन आइडल्स को लिया हुआ है अपना गॉड? तो वो अपने वालिद से पूछ रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही रिलाइज ऑन हिम फॉर सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, ही इज स्टिल आस्किंग हिम कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। इनको आपने इलाह माना हुआ है, इन फॉल्स गॉड्स को। इन्नी अराका व कौमका फी दलालिम मुबीन, मैं देखता हूँ कि आप और आपकी कौम जो है, आपके लोग, दे आर क्लियरली अस्ट्रे इन मैनिफेस्ट एरर। व कजालिका नुरी, और इस तरह हमने दिखाया इब्राहिम को, इब्राहिमा, मलकूत समावाती वल अर्दे, द लॉज ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, वली यकूना मिनल मोकिनीन, और ताकि वो हो जाएं यकीन करने वालों में से, दे ही शुड हैव सर्टेनिटी ऑफ थॉट। तो यहाँ हमें ये पता चल रहा है हजरत इब्राहिम का भी जो नाम है वो बरी से निकला है, टू एब्जॉल्व हिमसेल्फ, बिकॉज ही हैज वर्कड टू एब्जॉल्व हिमसेल्फ फ्रॉम दीज फॉल्स एंटिटीज which are served as gods, and because he clears himself of those, तो उनका नाम इब्राहिम है। और इन्हीं की फॉलोइंग में हमने भी अपने गॉड्स को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ कहाँ हम सर्व कर रहे हैं फॉल्स गॉड्स को, और फिर हम उनको, चाहे हमें स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना पड़े, गो अगेंस्ट आर कंफर्ट जोन, बिकॉज यहाँ पे वो अपने वालिद के सामने खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। सो मीनिंग कि हमें भी इस तरह से स्ट्रेंथ बिल्ड अप करनी है और अपने आप को चेक करना है कि कहाँ पे हम ऐसे आइडल्स बना के हमने रखे हुए हैं जिनको हम सर्व कर रहे हैं, और वहाँ पे हमें उनसे हमें उनको तोड़ने का मतलब ये है कि वी हैव टू ब्रेक दैट पैटर्न ऑफ सर्विंग देम। एंड इस तरह हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने लॉज दिखाए हैं। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलो, और फिर व्हेन द नाइट हाइड्स covers him, ra'a कौकबा, he sees a planet, एक कौकब, एक planet उनको नजर आता है जब रात पड़ती है। Now this is the search, this is how he identifies what is not God, and तभी आपको पता चलता है अल्लाह के बारे में, क्योंकि हम बगैर देखे अल्लाह पर ईमान लाते हैं। तो जब कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा, तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है व्हाट इज नॉट अ गॉड, देयर इज नो गॉड। तो पहले आप ये आइडेंटिफाई करते हैं, सारे इलाह को आप नेगेट करते हैं, इल्लल्लाह, एक्सेप्ट फॉर अल्लाह, एंड दैट इज व्हेन यू अराइव कि दिस इज अल्लाह, बिकॉज वहां आपके दिल को भी एक सुकून मिलता है, दिमाग को भी एक यकीन मिलता है कि ये अल्लाह का बताया हुआ रास्ता है, हम इस पे चलेंगे तो हम सही रहेंगे, एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। काला हाजा रब्बी, तो उन्होंने सोचा कि ये मेरा रब है। फलम्मा अफला, फिर जब वो प्लैनेट सेट हो गया, जब वो गायब हो गया,
काला ला उहिब्बुल आफिलीन, तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि नहीं, मैं पसंद करता उनको जो गुरूब हो जाते हैं, जो सेट हो जाते हैं, छुप जाते हैं। तो जो चीज रहने वाली है वही चीज आपका, आपके खुदा का रास्ता हो सकती है, अल्लाह का रास्ता हो सकती है। जो मिट जाने वाली, गायब हो जाने वाली, गुम जाने वाली चीज है, वो अल्लाह का रास्ता नहीं हो सकती। इसी तरह हम पहचानते हैं। फलम्मा रअल कमरा बाज़िगन, फिर उन्होंने देखा चांद को चमकता हुआ। काला हाजा रब्बी, एंड ही सेड दिस इज माय रब। फलम्मा अफला, then when the moon set, Kala, he said, La illam yahtani Rabbi, unless my Lord guides me, la akunanna minal qawmid dhalin. So, surely I shall be among those who go astray. तो अब अल्लाह जब तक मेरी हिदायत नहीं करेंगे तो मैं इसी तरह चीजों को देखता रहूंगा, समझता रहूंगा कि दिस इज व्हाट इज दिस इज द गाइडेंस ऑफ अल्लाह। बट जब वो भी हट जाती है तो फिर आपको पता चलता है कि वो तो नहीं है, दैट कांट बी। फलम्मा रअ शम्सा बाज़िगतन, फिर उन्होंने देखा सूरज को चमकता हुआ। काला हाजा रब्बी, फिर उन्होंने कहा ये मेरा रब है। हाजा अकबर, ये सबसे बड़ा है। अगेन हम भी इसी तरह से इम्प्रेस होते हैं, अनामर होते हैं चीजों के साथ जो सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा चमकती हुई हो, तो हमें लगता है कि ये है अल्लाह का रास्ता, हमें इसको सर्व करना है। फलम्मा अफलत, फिर जब वो भी गुरूब हो गया। काला, उन्होंने कहा या कौमी, ए मेरे लोगो, इन्नी बरी मिम्मा तुशकिरून तुशरिकून, बेशक मैं बरी हूं उससे जिससे आप एसोसिएट कर रहे हैं अल्लाह के साथ किसी और को एज गॉड। तो यहाँ पे अब उनको समझ में आ जाती है, जब वो बार बार थ्रू टेस्टिंग, थ्रू रिसर्च वो देखते हैं कि जो चीज गुरूब आ जाती है, जिस चीज को जवाल है, वो अल्लाह का रास्ता नहीं हो सकती है। और फिर वो कहते हैं कि नाउ आई क्लियर माई सेल्फ, यहाँ पे वो लफ्ज आ जाता है बरी का, कि मैं बरी करता हूँ अपने आप को जिन चीजों से जिनको ये शरीक करते हैं अल्लाह के साथ। एंड देन ही सेज इन्नी वजह तो वजिया लिल्लज़ी, बेशक मैं अपना चेहरा, अपना वज, अपना फोकस उसकी तरफ करता हूँ। फतर समावाती वल अर्दा हनीफन, उसकी तरफ जिसने क्रिएट किया है आसमानों और जमीन को अनकंडीशनली, unequivocally, हनीफन, ट्रूली, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं नहीं हूँ शिरक करने वालों में से। तो इट इज अ जर्नी टू आइडेंटिफाई कि कौन सा रास्ता अल्लाह का है और कौन सा रास्ता दूसरों को सर्व करने का है। तो इस जर्नी से हमें बार बार गुजरना होता है। सिर्फ कह देने से हम मुसलमान और मोमिन नहीं बन जाते, उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन होती है जो हमने प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी के अंदर उसको लाके करना होता है। जब हम अल्लाह को सर्व कर रहे हैं, अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, तो क्या हम उन लिमिट्स के बीच में रह के कर रहे हैं? हमारे हर एक्शन के ऊपर हमारा सवाल ये होना चाहिए, is this within the limits and boundaries that will be serving Allah, or is it serving something else? All those entities or deities that we have just read about in previous ayat. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हम ये क्यों करते हैं कि हम दूसरों को सर्व करना शुरू कर देते हैं, दूसरी चीजों को। तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। सूरा 15 की आयत 28, क्योंकि इंसान के साथ ये उसकी जिंदगी तक का ये सफर है कि ये आपका, आपकी जो एवोल्यूशन जैसे जैसे आपकी होती है, पर्सनालिटी की एवोल्यूशन होती है, आपकी अपनी ग्रोथ होती है, आपका आपका जो जमाना, बाहर से जो चीजें बदल रही हैं, इन सब को देखते हुए आपको आपको भी प्रोग्रेस करना होता है। रास्ते में आपका ये सवाल आपके सामने आएगा, what are you serving and are you on the right path or not, because we believe in accountability। अगर हम सही रास्ते पे नहीं चलेंगे, शुरू से ही हम
अपना कॉशियसली अपना रास्ता चूज नहीं करेंगे तो आगे जाके हमें पता है कि हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। सूरा 15 आयत 28 देख लीजिए। So we go to the times of the creation of human. व इस काला रब्बु का लिल मलाइकाती, जब कहा आपके रब ने फरिश्तों से, इन्नी खालिकुन बशरन मिन सलसालिन, मैं बना रहा हूँ बशर को, एक ह्यूमन, मिन सलसालिन मिन हमाइम मसनून, फ्रॉम साउंडिंग रैटलिंग क्ले, जो कि हमाइम मसनून ऐसी मट्टी से है, ऐसे मड से बनता है। मसनून मीन्स ट्रेडिशनल मड से बनता है, कंडीशनिंग के साथ बनता है। तो हम भी देखते हैं कि हम नेचुरली वी ग्रो अप विद, वी कैरी फॉरवर्ड आवर जनरेशनल कंडीशनिंग, आवर जनरेशनल पैटर्न्स फ्रॉम बिफोर, जो जो हमारी फैमिलीज में चलते आ रहे होते हैं, हम उसी में से बनते हैं। And we rattle, we resonate whatever we put in ourselves. It's like a hollow column. We are like a hollow column जिसके अंदर आप जो कुछ डालेंगे वही आप रेजोनेट करेंगे। तो हमें बहुत कॉशियस होना पड़ता है कि हम किन लोगों से अपने आप को सराउंड करें, किस किस्म की बातें सुने, किस किस्म की चीजें देखें। वो सब हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली रेजोनेट होती हैं। और हमारा माइंड सेट क्या है, बिकॉज आप अब फिल्टर्स जो हैं वो अब इंसान कहीं कुछ और कहीं कुछ और नहीं हो सकता। तो वो सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं जो आपने अपने अंदर डाली होती हैं। फाइजा सवैतुहु, और फिर मैंने उसको प्रोपोर्शन किया इंसान को, अल्लाह कहते हैं। वनफख्तु फीहि मिन रूही, और फिर मैंने फूंका उसमें अपनी रूह में से। तो अल्लाह जब इंसान बनाते हैं उसमें अपनी रूह फूंकते हैं। फकाऊ लहू साजिदीन, तो फिर तुम गिर जाओ इसके सामने सजदे में। तो जो सजदा करना है वो रूह को करना है जो अल्लाह ने इंसान में फूंकी है। तो सजदा इंसान को नहीं किया जाता, सजदा अल्लाह की उस स्पिरिट को किया जाता है जिसको आप रिकग्नाइज करते हैं किसी दूसरे इंसान के अंदर। सो वी सबमिट टू दैट। फसजदल मलाइकातु, सजदा किया मलाइका ने, कुल्लुहुम अजमाउन, उन सब ने इकट्ठे होके, क्योंकि वो अल्लाह की बात पे सबमिट करते हैं। इल्ला इब्लीस, सवाए इब्लीस के, अबा, ही वाज हॉटी, अन यकूना मा साजिदीन, और उसने कहा, he refused to be amongst those who would prostrate to the man। तो इब्लीस ने क्यों नहीं प्रोस्ट्रेट किया? क्योंकि इब्लीस का जो लफ्ज है, नाम है, वो बा ला सा रूट वर्ड से निकलता है, विच मीन्स ग्रीफ। wrapped up in, Iblis is wrapped up in grief side of us। तो हमारी जिस साइड पे हमारा ट्रॉमा है वो ट्रॉमा वाली साइड सबमिट नहीं करती है। तो हमारे अंदर हमें जितना देखना होता है कि कहीं पे हमारे अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमास हैं, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, जो कि हम ग्रीफ को पाल रहे होते हैं अपने अंदर, उसको रखा हुआ होता है, उसको सर्व कर रहे होते हैं। तो फिर हम वो काम नहीं कर पाते हैं जो अल्लाह ने हमें कहा होता है करने को। तो ये हमारी साइड होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई अगेन विद इन अस। ये आपको एक्सप्लोर करना होता है कि हम क्यों नहीं कोई काम कर पाते जो कि हमें करने चाहिए। जब हम लॉजिकली समझ लेते हैं कि हमें ये रास्ता इस तरह से चूज करना है या वो रास्ता चूज करना है, तो हमारे अंदर जो फियर्स एंड जो हेजिटेशन या जो कंफ्यूजन आ जाती है वो उस ट्रॉमा की वजह से आ जाती है। वी स्टे इन अ फ्रोजन स्टेट एंड वी आर नॉट एबल टू टेक एन एक्शन। तो इसके लिए हमें इब्लीस जो हमारे अंदर है वहां से शैतान का अटैक होता है। जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो शैतान होता है, वो सजेशंस देता है हमें, हमारे दिलों में डालता है, हमें वो फील होता है, रियलिटी फील होती है, लेकिन देर ओनली सजेशंस। सो वो सजेशंस होती हैं जो हम देखते हैं कि सूरह नास में भी हम पढ़ते हैं कि वो वसवसे डालता है हमारे अंदर और फिर छुप जाता है। सो इब्लीस है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है। और जब पूछा इब्लीस से कि तुमने क्यों नहीं सजदा किया, काला या इब्लीसु मा लका, ए इब्लीस व्हाट इज विद यू, अला तकूना मा साजिदीन, क्यों नहीं तुमने सजदा किया इनके साथ। काला, इब्लीस ने कहा, लम अकुन ली असजुदा लि बशरिन,
नहीं हूं मैं कि मैं सजदा करूं किसी बशर को। खलकतहु मिन सलसालिन मिन हमाइम मसनून, जिसको आपने क्रिएट किया है एक रेजोनेटिंग मट्टी से, जो कि ट्रेडिशनल मट्टी है। काला, फिर अल्लाह ने कहा, फखरुज मिनहा, तुम निकल जाओ यहां से। फ़इन्नका रजीम, एंड यू आर द वन रिजेक्टेड, धत्कारे हुए हो। व इन्ना अलैका, और बेशक तुम्हारे ऊपर, अल्लानता इला यौमिद्दीन, लानत होगी उस दिन तक जब जजमेंट कायम होने वाली होगी। काला रब्बे फ़अंज़िरनी, तो उसने, इब्लीस ने कहा, मेरे रब, गिव मी रिस्पाइट, इला यौमे युबअसून, टिल द डे द पीपल विल बी रेज्ड अगेन, जब सबको दोबारा रेज अपॉइंट किया जाएगा। अल्लाह सेज, काला फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, रिस्पाइट इज ग्रांटेड टू यू। तो अल्लाह ताला उसको मोहलत देते हैं, इब्लीस को, बिकॉज ही आस्क्स फॉर इट। तो जब तक का आप उसको उस ट्रॉमा वाले एरिया को, अपनी सेंसिटिविटी को, उसको ठीक नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर असर करता रहेगा, एंड यू विल कीप ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट स्पेस, जहां जहां आप, यू आर नॉट एबल टू सबमिट टू व्हाट अल्लाह इज आस्किंग अस टू डू। इला यौमिल वक्तिल मालूम, उसका वक्त मालूम है, उस दिन का। काला, उसने कहा, इब्लीस ने, रब्बे बिमा अग़वैतानी, माय लॉर्ड, बिकॉज यू हैव पुट मी इन द रॉन्ग, you tempted me, because Allah wanted to expose Iblis, and that is why Allah gave the command, which Allah knew कि Iblis will not follow, तब वो expose हो जाता है। हमारी लाइफ में भी जब ऐसी सिचुएशन आती है, हमारे लिए चैलेंजिंग सिचुएशंस, उसमें हमें पता चलता है अपने बारे में कि हम कितना सही कर सकते हैं और कितना हम कहीं पे स्टक हुए हुए होते हैं, एंड वी हैव टू वर्क थ्रू दैट so that we are able to resolve a deep rooted issue. And when we are able to, with Allah's help and with our sincere intentions, when we are able to go through it and resolve it, तो हमारे लिए बहुत सारी आसानियां खुल जाती हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सारे मसाइल ठीक हो जाते हैं। तो ये एक हमने अगेन देखना होता है कि हम, हमारे अंदर कहीं भी रेजिस्टेंस टू सबमिशन आ रहा होता है, उसके पीछे कोई ना कोई एक ग्रीविंग एलिमेंट होता है जिसको हमने अनरावल करना होता है। So he says कि because you put me in the wrong, you tempted me, la uzayyinanna lahum fil arde, I will make this earth, the life of this earth, seem fair to them, ताकि हम इसी दुनिया के साथ ही अटैच हो जाएं। वला उग़वियन्नहुम अजमाइन, और मैं इन सबको भटकाऊंगा, इनको टेम्प्ट करूंगा, सबको इकट्ठा। तो अब ये काम फिर इब्लीस करता है, हमें भटकाने का, हमें ट्रैक से हटाने का। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय उन बंदों के जो सिंसियर हैं, जिनकी इंटेंशन सिंसियर है अल्लाह की तरफ। काला हाजा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, और अल्लाह ने कहा, दिस विल बी माय वे, सिराते मुस्तकीम, मुस्तकीम कायम रहने वाला, सस्टेनेबल वे टुवर्ड्स मी। इन्ना इबादी, और बेशक मेरे बंदों पर, लैसा लका अलैहिम सुल्तान, तुम्हारी कोई अथॉरिटी नहीं होगी। इल्ला मन तबाका मिनल गावीन, सिवाय उनके दोज हु गेट टेम्प्टेड। तो शैतान सीधे रास्ते में बैठता है। in another area, सूरह 7 में 16 नंबर आयत में वो कहता है, मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा। So he sits in the right way to distract people. When you're doing wrong, he is not activated. When you start doing the right things, that's when he starts to play up. That's when all our emotions start to act up. And that's when we understand कि ये हम क्या कर रहे हैं, हम, we are not like this, and we have to explore, we have to be patient, and we have to be mindful and understand and ask help from Allah, stay connected with Allah. And that's when we come to Quran and we keep reading to understand where to find the right path and what will be the right way in this particular situation for us. इसके लिए दुआएं देख लीजिए।
Surah 14, ayat number 35. वइस काला इब्राहिम, ये हजरत इब्राहिम की दुआ है। तो ये हमने भी करनी है अपने लिए, ताकि हम सिर्फ अल्लाह को सर्व करें और बाकी चीज़ें जिनको हम कर रहे होते हैं सर्व, इट्स अ प्रोसेस ऑफ करेक्शन, तो उनको हम करना छोड़ दें। रब्बिज अल हाजल बलदा आमिना, ए मेरे रब बना दीजिए इस स्पेस को, इस जगह को मेरे लिए अमन वाली, पीस एंड सिक्योरिटी वाली। वजनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम, और अजनबी कर दें मुझे और मेरे बेटों को, मेरी औलाद को, अजनबी estranged from us, that we serve these idols, जो सनम हमने पढ़े हैं कुरान से, इन सनमों से हमें अजनबी कर दीजिए, मुझे भी और मेरी औलाद को भी। एस्ट्रेंजनेस मीन्स कि अब यू डू नॉट सर्व देम, और आप उनसे डिटैच हो जाएंगे, अब वो आपको टेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ये दुआ है जी। और दूसरी सूरह 23 की 97। वकुल, और कह दीजिए, रब्बे आऊज़ बिका मिन हमाजात शयातीन, ए मेरे रब मैं पनाह मांगती हूँ आपकी मिन हमाजात शयातीन, शयातीन की सजेशन से। जो शयातीन आपके दिलों में जो एक स्पर्स, और जो एक आपको अंदर से हमाजात इस जो आपको अंदर से मूव कर देती हैं, द स्पर्रिंग सजेशंस, उनसे आप पनाह मांगे, अल्लाह की तरफ आए। व आऊज़ बिका रब्बे अन यहदुरून, और मैं पनाह मांगती हूँ आपकी मेरे रब कि ये हाजिर भी हो जाएं, इनकी प्रेजेंस भी कहीं ना हो। सो ये दो दुआएं हैं जिनके जरिए वी कैन ट्राई टू कीप आवरसेल्व्स प्रोटेक्टेड। एंड जी, द वर्स इज, द फर्स्ट वन इज सूरह 14 ayat 35, and the second dua is surah 23 ayat 97 and 98. So may Allah give us the guidance and keep us protected. And we have to make an effort to understand and to keep a watch on what are we serving. And if things are not going right, again, we have to ponder, we have to reflect, introspect, and figure out, are we serving something other than Allah? Because if we are serving Allah, then we should have that sense of feeling, that peace, and that feeling that we are on the right track. But if there is something disturbing us from inside, our heart tells us, हमारी intuition भी हमें guide करती है कई दफा कि ये चीज ठीक नहीं हो रही है, तो we have to explore, and it's a process. So it's not कि अगर हमने गलती कर ली तो हम correction नहीं कर सकते। हमारा काम ही यही है कि जब हम गलती करें, हमें पता चले तो हम correct करें। ईमान का मतलब ये नहीं है we are not guided. When we ask for guidance from Allah, इसका मतलब ये है कि we accept and we submit that we are not guided, and Allah is not watching over us कि हम गलती करेंगे तो फौरन सजा मिलेगी। Yes, if it is for us, for our protection, we get told instantly if something is dangerous for us. लेकिन हमें टाइम बहुत दिया जाता है ताकि अल्लाह ताला wants us to understand properly कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, और उसको हम एक्सप्लोर करें, और अपने जहाँ जहाँ इमोशनल गैप्स हैं, ये जो ट्रॉमास हैं, और जहाँ जहाँ हम गिव इन कर जाते हैं और सही रास्ते पर नहीं चल पाते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करके वर्क ऑन दोज। एंड देयर आर लॉट ऑफ टूल्स एंड एड्स अवेलेबल नाउ टू हेल्प साइकोलॉजी एंड थेरेपी एंड थिंग्स, जिनसे हमें गाइडेंस मिल जाती है कि हमें किस तरह से अपने आप को नेविगेट करके चलना है। बट ये वाला जो डायरेक्शन है, ये हमें यहाँ से पता चलती है कि हमें अल्लाह की तरफ सर्व नहीं करेंगे तो हमें मसले आते हैं, और जब सर्विस में रहते हैं तो हमें सुकून, हार्मनी और पीस कंसिस्टेंटली एक लेवल की मिलती रहती है। जी, थैंक यू।